اس نے نا پاکستان کو اور ایران کو یہ راستہ دیا ہے کہ پاکستان کے پاس چلے جاؤ، ابھی بھی میں تمہیں راستہ دینے کو تیار ہوں. جو ان سائڈ ووٹر ہے نا بی جے پی کا، وہ بڑا فنیٹک اور فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ووٹر ہے. کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ تو ایک یقین کریں ایک نہایت وزادار اور ایک نہایت مضبوط جو صوبہ تھا اس کے اوپر ایک بڑا تاریک سا یہ سایہ ہے. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ اور ایک مرتبہ پھر سے کشیدگی کا آغاز ہو گیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. ایران کے لیے کس حد تک مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے تجزیہ کار یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایران اپنے کارڈز کو اوور پلے کر رہا ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ان تمام تر معاملات پر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں تفصیل سے بات کریں گے اور آئندہ آنے والے دنوں کی ڈیولپمنٹس پر بھی. اور اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. روکھڑی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے ایران کے جو یو اے ای پر حملے ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں، امریکی جہازوں پر بھی ایران نے اٹیک کیا ہے. یہ خدشہ کس حد تک موجود ہے کہ دوبارہ سے کانفلکٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ جو ریسنٹ ٹویٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ اس ساری چیز کا جواب دیتا ہے. اچھا، اس میں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بال پھینکی ہے پاکستان کے کورٹ میں، اور اس کا وہ جو ریزلٹ آف دیٹ ٹویٹ ہے یا کنکلوژن جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو نرمی کریں گے. پاکستان کے کہنے پر ہم شپس کو اندر داخل ابھی تک نہیں کریں گے، بلاکڈ ہمارا جاری رہے گا. اور اس نے نا پاکستان کو اور ایران کو یہ راستہ دیا ہے کہ پاکستان کے پاس چلے جاؤ، ابھی بھی میں تمہیں راستہ دینے کو تیار ہوں. یعنی اس کا جو جواب بنتا ہی ہے کہ امریکہ نے مکمل نرمی کا جو ہے نا میسج دیا. اب یہ جو حملے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے یو اے ای کے اوپر، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. یہیں پر ایران سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن سمجھ یہ آتا ہے کہ ان کی غلطی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کی کمانڈ میں اتنی ڈویژن ہے کہ آئی آر جی سی کچھ کر دے گی، جو پولیٹیکل کمانڈ ہے وہ کچھ کرے گی، تو وہ جو کمانڈ سٹرکچر ان کا بریک ہو گیا تو اس کے بیچ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا روکھڑی صاحب، یہ کتنا انسسٹینیبل بھی ہے کہ سویلین گورنمنٹ کچھ اور کہتی ہے، آئی آر جی سی کچھ اور کہتی ہے. سویلین گورنمنٹ چاہتی ہے ڈیل ہو جائے، معاملات حل ہو جائیں، آئی آر جی سی ہارڈ لائن لے رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھی جائے کہ کوئی بھی ملک کوئی وہ فیصلہ کرے جو اس کی عوام کو فائدہ ہو. ایران کے پاس آپ تیل دیکھیں کتنا ہے، آئل آپ ریزروز دیکھیں یہ کتنا ہے، ایران کے پاس اسٹیل انڈسٹری کتنی ہے، ایران کی آپ ادروائز چیزیں دیکھیں نا تو ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے. کیا یہ کھانے پینے کی اشیاء ہے، آپ اگر مارکیٹ میں اپنے اب لینے جائیں ایرانی کھائیں تو آپ کہیں گے ایرانی بہت بہتر چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا ملک کی اکانومی کہاں چلی گئی بیکاز آف دا رانگ پالیسیز. بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جو ایکسٹریمسٹ ویوز کے ساتھ چل پڑے اس کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں. ایران کو اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اس مسئلے کا حل جلدی ڈھونڈ لینا چاہیے. لیکن میں ہوپ فل اس لیے ہوں کہ آپ کا پہلے سوال کے جواب کے ساتھ جوڑتا ہوں بات کو کہ امریکہ نے جس طریقے سے دوبارہ راستہ دینے کی ان کو راستہ دے رہا ہے امریکہ، اور ایرانی جو ہیں ان کی طرف سے بھی اچھی ابھی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 10-15 دنوں میں پاکستان میں دوبارہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اچھا، یہ لگ، اور یہ مجھے یہ کوئی ایک ہوتا ہے نا غالب گمان ہے یہ. اور اس دفعہ جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ چیز ونس اینڈ فار آل فائنل ہو جائے گی. یعنی اب یہ نہیں ہوگا کہ واپس ایک جا رہے ہیں تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں وہ پوچھ رہا ہوں. میرے خیال میں وہ آپ اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ جس پر ایران کا راستہ ملنے کے لیے اس سے بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان سے بہتر اس کے لیے بھی آپشن کوئی نہیں. امریکہ نے ویسے آپ کو اپنی آپشن نمبر 1 قرار دیا ہوا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ تھرو پاکستان ہوگا. میرے خیال میں اگلے 10-15 دنوں میں کچھ ہو جائے. اچھا، اور پھر اس کی واضح کلیئرٹی یہ بھی تو ہے روکھڑی صاحب کہ کل عباس اراغچی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی میڈیشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ 10-15 دنوں میں ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ مذاکرات کا اسلام آباد میں دوبارہ سجے گا اور محور مرکز بنے گا؟ دیکھیں، راستہ ان کے پاس واقعی اور کوئی نہیں ہے. وہ رشیا کی طرف بھی گئے، وہ اپنی خیر انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا، وہ ہم اس کو آبجیکٹ تو نہیں کر سکتے. لیکن ایک آدمی دیکھتا ہے نا کہ ان کے لیے سیفسٹ راستہ کون سا ہے، جہاں پہ ان کی بچت ہے، جہاں پہ ریجن کا فائدہ ہے،
तो वो वाकई पाकिस्तान है। और आप देखते हैं कि इस मर्तबा कोई डील भी हो जाएगी। इस दफा जो बैठक होगी वो 100% रिजल्ट्स लेके आएगी। अब जो होगा वो फाइनल होगा। ठीक, और ये जो 14 पॉइंट्स का फॉर्मूला अभी ईरान ने अमेरिका को भेजा, फिर अमेरिका ने कुछ काउंटर उसके हवाले से नुकात भी दिए। मेरे ख्याल में उस पे ना इनका इत्तेफाक हो गया है मेरा ख्याल है। अच्छा, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान कि की मोस्टली जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना उस पर इनका इत्तेफाक हो गया, और ईरानी जो हैं वो डायरेक्टली भी अमेरिका के साथ राब्ते में है। ओके, ठीक है। अच्छा रोकड़ी साहब, भारत में सूबाई इंतखाबात हुए और हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, और हम अभी तक तो देखते आए हैं कि वहाँ पे हिंदुत्व और मोदी सरकार की जो हुकूमत है उसने भारत का क्या हशर की है। तो आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि इंडिया में जो हिंदुत्व है वो बाकायदा तौर के ऊपर डोमिनेट होने जा रहे हैं? देखिए, उन्होंने ना इलेक्शन प्लान किया। अब वहाँ पे एक अवैसी ग्रुप है जो नजर तो आता है आपको कुछ और, लेकिन वो फैसिलिटेट कर जाता है। उन्होंने जब अपने कैंडिडेट्स खड़े किए तो उसका डायरेक्ट फायदा चला गया बीजेपी को। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का वहां पर नैरेटिव बिल्कुल खत्म हो गया है या ये हुआ है। कांग्रेस कम बैक कर रही है और बीजेपी अपनी तरफ से मुकम्मल जोर लगा रही है कि किसी भी सूरत वो वहां से उखड़ ना सके। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग है। मैं एक और भी बात करता हूं, मैं कहता हूं देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी है उनकी अपने बॉर्डर्स के अंदर की, बीजेपी की पॉलिसी, और एक इंडिया का तशख्खुस था बॉर्डर से बाहर का। बॉर्डर से बाहर का जो इंडिया का तशख्खुस है वो बहुत डैमेज हो चुका है। इंडिया का नहीं, बीजेपी का, आरएसएस का या मोदी का, वो बहुत डैमेज हो गया, और उसको आपका मार्का हक जो है उसके बाद बहुत ज्यादा उसको एक धचका लगा है। लेकिन जो इनसाइड वोटर है ना बीजेपी का, वो बड़ा फैनेटिक और फार राइट एक्सट्रीमिस्ट वोटर है, जो उसको उन्होंने उसके ऊपर तैयार किया। तो उनका कोई अक्ल से या शऊर से इतना ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर काम भी किया हुआ है। हम बिल्कुल दुश्मन तो है हमारा, लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे तो उन्होंने अपने मुल्क में काम भी किया हुआ है, और उस वजह से लोगों को फायदा भी। आप देखें कि अमेरिका में या ओवरसीज जो उन्होंने बंदे भेजे हैं ना, 2 नंबर तरीके से पेपर्स कराए, चीटिंग की, नस्लों की नस्लें, खानदानों के खानदान कनाडा भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिए, पता नहीं किस किस चैप्टर के अंदर। अब वहां से वो निकाले जा रहे हैं क्योंकि वो क्वालिफाइड है ही नहीं, तो भेजे तो इन्होंने ना। अब मैं इलेक्शन लड़ूं और मैंने अपने इलाके में से 200 आदमी भी बाहर भेजा हुआ हो ना, तो वो सोचे ना कितना बड़ा वोट बैंक होगा। तो बीजेपी ने हर वो जुर्म किया है दुनिया के साथ, लोगों को अपने कंपनसेट करने के लिए दुनिया के साथ उन्होंने बहुत जुर्म किए हैं। अच्छा, दुनिया रियलाइज कर गई है कि क्या गेम हो गई है उनके साथ, और आप देखेंगे अभी इस मोदी के इस पूरे कल्चर के खिलाफ पूरे यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में पूरी टारगेटेड मुहिम चलती हैं कि ये क्या किया इसने, लेकिन अपने अंदर उसको अभी तक फायदा है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जब ये चीज हो जाती है आपकी ईरान इराक वाला, तो उसके बाद भी अच्छा एक और भी जी अभी नोट करें कि जैसे ही मोदी को ने देखा है ना, तो मोदी इस वक्त रिजीम चेंज ईरान के लिए मुकम्मल बाहर आ गया। जी बिल्कुल, हाँ। तो दे आर वेरी क्लेवर पीपल, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसका नैरेटिव 100% खत्म हो गया, वो अपना स्ट्रगल जारी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आएगी। और कांग्रेस जगह बना रही है। मुल्क की दाखिली सियासी उमूर पर भी थोड़ा सा आज हम बात करते हैं। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से बहुत सारी खबरें रोकड़ी साहब गर्दिश कर रही हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से, और मुझे तो यूं महसूस होता है कि ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद खुलता ही चला जा रहा है और मजीद नई कहानियां सामने आ रही हैं। हर शख्स का ही इस पर डिफरेंट टेक है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको पहली चीज ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे कीमती तरीन प्लॉट है, इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का ये एक प्राइम लोकेशन है, सबसे कीमती प्लॉट है, 13.5 एकड़ इसकी जगह और बहुत बड़ा प्लॉट है। और इसका असल मकसद था कि यहाँ पे 7 स्टार होटल बनेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसा पाकिस्तान में होता है, कुछ सेठों ने या कुछ लोगों ने पैसे की जोर के ऊपर उन्होंने हर कानून तोड़ा, और उस कानून तोड़ने में सीडीए शामिल, उस कानून तोड़ने में उस वक्त के जजेस शामिल, उस कानून को तोड़ने के लिए हर कोई शामिल था, और उस कानून को तोड़ने के बाद जो कुछ हुआ ये अब ये हालात है जो आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम सारों ने ना फोकस किया हुआ है कि जी अपार्टमेंट्स किस किस के अंदर हैं,
जी। तो भाई छोड़ो अपार्टमेंट्स किस किस के अंदर है, बात ये है कि अपार्टमेंट तो उन्होंने खरीदे ना, जिसने भी खरीदे, चाहे उसने हेरोइन बेच के खरीदे, जी। चाहे उसने डकैती मार के खरीदे, लेकिन चाहे किसी ने अपनी हलाल पैसे से खरीदे। जी। अमीर होना कोई जुर्म तो नहीं है ना। अगर जिन्होंने खरीदे हैं अपार्टमेंट्स उनको छोड़ें। आप ये बताएं कि ये पहले दिन से लेके आखिर तक ये खड़ा कैसे होगा सारा कुछ, उसकी गैस लगी, उसकी बिजली लगी, उसके मीटर्स लगे, उसके नक्शे पास हुए, और वो कोई ऐसे तो नहीं था कि कार्टून था कि ऐसे हुआ तो खड़ा हो गया। वो साल लगे रहे, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती रही, सारा कुछ होता रहा, और पाकिस्तान उस वक्त खामोश था। मैं ये कहता हूँ कि ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इसके ऊपर पूरी एक डिस्कशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान एज ए होल के साथ क्या कुछ होता रहा है। हमें इस चैप्टर से अगर हमने निकलना है इस दलदल से, तो हमें बड़ी एक एक्यूरेसी के साथ और बड़ी दुरुस्त तरीके से निकलना पड़ेगा, और ताकि हमारा इमेज डिस्टर्ब ना हो। आपको बताऊं, इस एक चीज की वजह से आपका इमेज काफी डिस्टर्ब हुआ है, चाहे लोग ओवरसीज हैं, चाहे एम्बेसीज हैं। यानी हमें मजाक नहीं बनना चाहिए, हमें संजीदा होकर मामलात हल करने चाहिए, और ये बड़ा एक अजीब सवाल ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात की रोकथाम भी मुमकिन हो सके। अच्छा रोकड़ी साहब, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया, और वो एलामिया बेस करता था पूरा अफगानिस्तान और इंडिया के नैरेटिव के ऊपर, जो इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत खास तौर के ऊपर ये बार बार कह रही है कि पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को टारगेट करें, जबकि पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान की हुकूमत बारहा ये कह चुके हैं कि हम वहां पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाते हैं, और जब तक वहां पर दहशतगर्द हैं हम तब तक उनका कला कमा करके रहेंगे। तो इस मर्तबा आप क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा भारत अफगानिस्तान से करवा रहा है और अफगानिस्तान भारत की जबान बोल रहा है, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? देखिए, प्रोपेगेंडा तो होगा, प्रोपेगेंडा अगर हम कहें कि नहीं होगा वो तो होगा। अच्छा, हमने अपना नैरेटिव बयान करना, और हमारा नैरेटिव कितना स्ट्रांगली जा रहा है, ये चीज है सारी। दूसरी चीज ये है कि दहशतगर्दी तो हो रही है जी, उधर से कैंप्स तो वहां पे चल रहे हैं। अभी आपकी बहुत बड़ी शहादत हुई है बरदान के अंदर, जो सवाबी के अंदर है, बहुत बड़े आलम दीन थे और बहुत एक पेट्रियट थे और इस मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा थे जी। तो दहशतगर्दी तो हो रही है, दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, चाहे BLA की सूरत में है, चाहे TTP की सूरत में है। तो हमें इन तमाम मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मेरे ख्याल में जो चीजें हो रही हैं वो एक पॉलिसी के तहत हो रही हैं। प्रोपेगेंडा वो भी करेंगे, और हमने काउंटर नैरेटिव कितना अच्छा और कितना स्ट्रांग देना है ये मैटर करता है। ओके, मौलाना इदरीस साहब का आपने जिक्र किया, उसकी जिम्मेदारी भी रोकड़ी साहब इन्होंने कबूल की है, खुरासान ने, फितना उल खवारिज ने, और हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने तारीफ की थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और फील्ड मार्शल साहब की कि वो लोग अमन की कोशिशों में बड़ा अहम किरदार अदा करें। तो क्या ये जानबूझकर टारगेट किलिंग की जा रही है फिर ऐसे लोगों की? अच्छा, ये तसलसल है, ये काफी ये नहीं है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। दूसरा, इस मौलाना इदरीस का जो शहादत है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी वहाँ की का नैरेटिव बड़ा खतरनाक था, और जो इनके ओवरसीज बैठे हुए थे उस पॉलिटिकल लोग जो जुड़े हुए थे उनका नैरेटिव भी इतना खतरनाक था कि जब मौलाना इदरीस ने प्रो गवर्नमेंट या रियासत की सपोर्ट के लिए बात की, तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उन PTI जिसको हम कहते हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत गलत प्ले किया। अब ये कड़ियाँ जुड़ती हैं उन पॉलिटिकल लोगों की और इन दहशतगर्द तंजीमों की कि ये दोनों का टारगेट एक बंदा हो जाता है। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल लोग, जो पॉलिटिकल छतरी है ना बड़ी, उसके नीचे काफी चीजें निकल आएंगी, टेररिस्ट और ये जो एक गठजोड़ है ये भी सामने आएगा। तो रोकड़ी साहब, इसमें तो KP हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ना कि टारगेट किलिंग को वो रोकें। विफाकी हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं है कि वो फिर जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम तर मामलात को रोकेंगे। देखिए, KP गवर्नमेंट फारिग अगर हो जाएगा ना उसका चीफ मिनिस्टर माल बनाने में और अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे खाने से, और अगर उसको काम आएगा, अभी क्या कहें, डेर इस्माइल खान से आप शुरू करें, लॉलेसनेस के आप हालात देख लें, लोगों के लिए मसाइल देख रहे हैं, तो KP गवर्नमेंट जो है वो तो एक यकीन करें एक नहायत वज़ादार और एक नहायत मजबूत जो सूबा था उसके ऊपर एक बड़ा तारीख सा ये साया है। कब ये इससे जान छूटेगी, आई डोंट नो।
ٹھیک، بہت شکریہ روحی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.